कोई साइकिलिंग करते टाइम somebody got a heart attack, gym में people got a heart attack. So if you could throw some light on that as well. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लाइफस्टाइल रिलेटेड। देखो तो लड़के गाड़ी चला रहे हैं और एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं। What is angioplasty all about? एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है, तो डेटा कहता है कि डीसीबी के अभी लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। स्टेंट लगाने के बाद भी इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ब्लॉकेज आ सकती है? स्टेंट कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। फिर भगवान की बनाई हुई आर्टरीज वो बंद हो सकती हैं, तो इंसान का बना हुआ स्टेंट भी बंद हो सकता है। किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज होनी चाहिए। जब आप वॉक कर रहे हो तो टेक ए टॉक टेस्ट। Hello and welcome to Storymakers, powered by Concept Medical. I'm your host, Divyesh Sharma. Today we are honored to have with us a truly inspiring guest, a doctor whose mission goes far beyond the stethoscope. Dr. Naveen Bhamri is a highly respected cardiologist with over 23 years of dedicated service in the field of medicine, currently the Vice Chairman and Head of Cardiology at Max Super Speciality Hospital, New Delhi. He is not only a medical expert, but a true change maker in healthcare. What sets Dr. Bhamri apart is his deep-rooted passion for preventive care and public awareness. Through his powerful use of social media, including Instagram Reels that have reached millions of people, he is redefining how health education reaches the masses. From leading groundbreaking procedures to mentoring the next generation of doctors, his journey is as inspiring as it is impactful. His motto says it all, not just to treat the heart, but to touch people's hearts. It's a privilege to have him here with us today. Welcome, Dr. Naveen Bhamri. So thank you so much for joining us today. It's such a pleasure that you've been able to take out your precious time and come here to the studios. Thank you, Divya, and it's my pleasure to be here and to discuss something about the cardiology today for the general population, because we are facing a lot of cardiac problems every day. वर्ल्ड वाइड तो ये प्रॉब्लम थी ही, जितना मैंने पढ़ा भी है, समझा है, इंडिया में अगेन इट्स बिकमिंग एज क्लोज टू एन एपिडेमिक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो इफ यू कुड टेल अस कि किस रेट पे बढ़ रहा है, हाउ बिग हैज इट बिकम एज अ प्रॉब्लम इन टुडेज टाइम्स, इट विल बी ग्रेट. This is a very relevant data you have asked, because if you see the data, 25% of the heart attacks occur in less than 40 year of age in India. And 50% heart attacks less than 50 year of age. This is quite, this is very troublesome data for the younger population, because हम जो Indian population है maximum youth generation generate करते हैं world की, and this generation is getting lot of heart attacks. So this is very troublesome, very fearful data, and we should work on it, because ऑपरेशन दिल एक स्टार्ट कर देना चाहिए. ऑपरेशन सिंदूर ये तो हमने बहुत देखे हैं, but I think we should start the operation Dil to save the younger population of India. Right, and I think this is going to be a fight which we are fighting within ourselves, within our houses. Exactly, not on the borders. Absolutely. So great. हम ये बात करते हैं now, as जैसे आपने बोला 40 below की population is also being hit, and आजकल news में भी कितना आ रहा है, so many celebrities is what we get to know very easily, rather than a regular जनता की कोई cycling करते time somebody got a heart attack, gym में people got a heart attack. Not even that, I believe even the rate of heart attacks in women have also gone up. True. Of cardiac diseases, and even in kids is going up. Yes. So if you could throw some light on that as well. So this is basically, there was a study called InterHeart study was done, and that study shows that apart from the risk factors like diabetes, blood pressure, high cholesterol, smoking, there are other risk factors that are more responsible for the younger heart attack in India. The most important is lifestyle related. जैसे कि जंक फूड, इसका इनटेक इतना ज़्यादा हो चुका है. आप देखो तो लड़के गाड़ी चला रहे हैं और एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हैं. they are toxic for your heart. So lifestyle जो है is the most important factor. Second, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस का ओवरबर्डन है. अपने टारगेट्स को रीच करना है, अपनी ईएमआईज भरनी है, तो ये टारगेट्स और ये जो है ना, यू हैव टू रीच दैट लेवल, और ये वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स दैट लीड टू अनदर, this lead to cortisol, increase cortisol level, and that further leads to cardiac problems. So lifestyle जो हो गया है. दूसरा, तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिम.
जिम तो लोग जा रहे हैं, बट अनरेगुलेटेड प्रोटीन का इंटेक जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. There are lot of things. There are mixture in the protein that is called anabolic steroids are there, or something is there that lead to more cardiac problems. And secondly, intake of कैफीन इंटेक बहुत बढ़ चुका है. दैट लीड्स टू इंक्रीज योर इंक्रीज हार्ट रेट. वो प्री वर्कआउट कैफीन लेते हैं लोग. ठीक है, इट्स ओके टू टेक, बट नॉट इन दी इतनी डोज में मत लो कि आपको अरिथमियाज, आपके दिल की धड़कन को बढ़ा दें. तो ये सब चीजें बहुत हो गई हैं. स्टीरॉइड्स का यूज, मसल बूस्टर्स का लोग यूज करने लगे हैं. तो दीज आर द थिंग्स आई थिंक दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, कि इन चीजों के ऊपर हम कैसे टारगेट कर सकते हैं. एंड लास्टली, availability of the junk food through these media. I don't want to take the name. Absolutely. But you can take everything within 2 minutes or 10 minutes. You pick up your phone and there are 10 places to order food from, and it's become a habit. So do you think ki, as you mentioned, these are lifestyle habits as well, so the entire lifestyle needs to be changed. घर में खाना बनाने की आदत probably कहीं छूटती चली जा रही है. शायद ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नानी दादी के तरीक़ों की तरफ वापस जाएं, दोबारा उधर की तरफ मुँह मोड़ें, घर पे खाना खुद बनाएं, बच्चों को भी सिखाएं as to how to cook, so that at least you know that your ingredients are clean. बिल्कुल ठीक. Eat what your grandma ate. Yeah. This is what we need actually. Right. Absolutely. And even now when you talk about लाइफस्टाइल पे ही मोर, अब जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं, हम वी टॉक अबाउट विमेन एज वेल, तो काम तो एक जगह है ही जहाँ पे बहुत स्ट्रेस है. वर्कआउट्स भी, जिम बहुत लोग नहीं भी जाते हैं, बट देन स्टिल द सेडेंटरी लाइफस्टाइल हैज इंक्रीज सो मच. एवरीबडी इज सिटिंग ऑनलाइन and spending time. रात को नाइट लाइफ has become huge. नाइट लाइफ के अलावा even people who are at home are spending, gaming हो रही है रात को, so there is no circadian rhythm being followed. Exactly. Sleep patterns have so how can probably somebody who's a young person, maybe a 20-year-old, उनको क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, जो आपने बहुत सारे नए नए रिस्क फैक्टर्स बताए, जैसे कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, लॉन्ग सिटिंग विच इज कॉल्ड अ न्यू स्मोकिंग. लॉन्ग सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग. आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, लंबे लंबे टाइम तक लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, आप मूव ही नहीं करते अपनी जगह से. अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो एक टारगेट बन गया, मेरे को 6 घंटे के अंदर वहां पहुंचना है. दिस इज लॉन्ग सिटिंग. ऑल these factors need to be taken care of, because ये जो है आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंस जब होती है, आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, एंड दैट लीड टू मोर ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स. लॉन्ग सिटिंग होती है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो एक कार्डिक प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. दूसरा, जो आप अनरेगुलेटेड अनप्रोसेस्ड फूड, मोर प्रोसेस्ड फूड, नॉट अनप्रोसेस्ड, मोर प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, आपके उसके अंदर आपको उसके कंटेंट का पता ही नहीं है कि इसके अंदर क्या है. हाउ मच ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर देयर, शुगर कंटेंट उसका कितना है, एनर्जी ड्रिंक्स के अंदर शुगर कंटेंट कितना है, आपको पता ही नहीं है. बट यू आर एवरी डे बिंज वॉचिंग हो रही है, टीवी देख रहे हो, आप बिंज वॉचिंग कर रहे हो, और आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लिए जा रहे हो, 2 कोला पिए जा रहे हो. दिस इज व्हाट the younger population को we need to tell them कि this is not good for you, because you are our future. आप हमारा फ्यूचर हो. और बिकॉज मैं तो ये कहता हूँ कि हमें एट द एज ऑफ 18 to 20 ईयर्स सबका लिपिड प्रोफाइल कराना चाहिए, जिससे कि अवेयरनेस यहाँ से जागेगी कि अपना लिपिड प्रोफाइल कराओ. सी व्हाट इज योर नंबर. If you know your number, then only you will get to know कि हाँ, I am right now, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से अपने आप को संभालना है. Absolutely. So ये पुरानी बातें हो गई हैं कि when you touch 40 तब आप अपने जाके टेस्ट कराइए. As doctor has told us, getting to know your numbers is of extreme importance. So as early as 18-20, get your reports done, know your numbers, go and meet your doctor and understand what lifestyle changes you should be making. Okay, now let's get into some specifics. Now angioplasty की भी बहुत बात होती है. If you could, explain to our audience, what is angioplasty all about? एंजियोप्लास्टी का मतलब होता है, जब आपकी हार्ट अटैक होता है या हार्ट के अंदर एंजाइना पेन होता है, तो आपकी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज. कोरोनरी आर्टरीज जब ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके खोलने के प्रोसेस को
उस प्रक्रिया को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिसके अंदर हम जो ब्लॉकेज होता है उसके थ्रू एक वायर पास करते हैं, फिर उसके ऊपर एक बलून लेके जाते हैं, उस बलून से उस कचरे को जो भी डिपॉजिट हो गया होता है उसको फुला के हटाते हैं और नॉर्मल फ्लो को मेंटेन करते हैं। दिस इज व्हाट द एंजियोप्लास्टी इज। अब एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करने के बाद समटाइम आर्टरी दोबारा बंद हो जाती है, तो वी नीड टू पुट ए स्कैफोल्ड और वी नीड टू पुट ए स्टेंट, दैट इज कॉल्ड स्टेंट एंजियोप्लास्टी विथ स्टेंटिंग। Okay, so when you say immediately बंद हो जाती है, is that like as soon as the procedure is done या कुछ टाइम लगता है इस प्रोसेस में? सो दिस इज, ऐसा नहीं है कि सबके अंदर इमीडिएटली बंद हो जाती है। किसी किसी की आर्टरी रिकॉइल इमीडिएटली हो जाती है, किसी की 1 दिन में होती है, किसी की 2 दिन में, किसी की 6 महीने में। सो टू प्रिवेंट दैट रिकॉइलिंग वी नीड टू पुट ए स्टेंट। ओके, ऑल्सो टेल अस कि स्टेंट लगाने के बाद भी इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि ब्लॉकेज आ सकती है क्या? बिल्कुल, स्टेंट कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो इमीडिएट रिलीफ करने के लिए होता है। आपको लाइफ सेविंग, जब आपको हार्ट अटैक होता है तो उसको लाइफ सेविंग प्रोसीजर के लिए आपको फ्लो मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। स्टेंट बंद हो सकता है। Okay. जब नेचुरल आर्टरी, भगवान की बनाई हुई आर्टरीज वो बंद हो सकती हैं, तो इंसान का बना हुआ स्टेंट भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो स्टेंट इज बेसिकली अ मेश, इट्स बेसिकली अ मेटल इनसाइड योर आर्टरीज। तो मेटल बंद हो सकता है। विथ देयर आर नाउ लॉट ऑफ गुड स्टेंट्स अवेलेबल, ड्रग ल्यूटिंग स्टेंट्स, जिनके साथ भी डेटा कहता है कि 5 to 7% चांस ऑफ रीस्टनोसिस या दोबारा बंद होने के चांस रहते हैं। इवन विद द बेस्ट स्टेंट्स, इवन इफ यू आर compliant to all the drugs, still there is 5 to 7% chance कि stent भी बंद हो सकता है। Okay, there's also a new concept which is in the market which is called as stent-less angioplasty. उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। This is very innovative technique I can say। जी हाँ। Stent-less angioplasty मतलब हम यूज करते हैं ड्रग कोटेड बलून्स को। जैसे उसके अंदर क्या करते हैं कि जब आपने बैलून को फुलाया, आपने जो ब्लॉक्ड आर्टरी थी उसको खोल दिया, अब उसके अंदर दोबारा चांस है रिकॉइल होने के। तो हम जब स्टेंट डालते हैं तो एक मेटल छोड़ देते हैं, बट नाउ अ डेज देयर आर ड्रग कोटेड बलून्स आर अवेलेबल, जिसके ऊपर, उस बलून के ऊपर ही दवाई होती है, जिसे जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती हैं जो हम स्टेंट के अंदर लगाते हैं, वही एंटी कैंसर ड्रग को हम बैलून के ऊपर कोट कर देते हैं। और वहां जहां पे ब्लॉकेज होती है वहां जाके उसको डिप्लॉय करते हैं, वहां पे उसको फुलाते हैं जब बैलून को, तो वो जो ड्रग होती है वो लेयर एक बना देती है, मेडिसिन की लेयर जहां पे ब्लॉक होती है, और उसको जो है वहां पे जो ड्रग को हम रिलीज करके आ जाते हैं। ये वही तरीका हो गया है जैसे अगर आप एक जो है, जैसे कहते हैं कि एक आयरन रॉड है जिसके ऊपर रस्ट लग गया है, अब आपने उसे एंटी रस्ट पेंट करके आ गए हो अंदर से, सो वो नेचुरली धीरे धीरे हील होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी। ओके, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज कॉल्ड एज डीसीबी। सो इफ यू कैन टेल अस कि डिफरेंस क्या है डीसीबी में और स्टेंट में, एंड ये कॉन्सेप्ट भी काफ़ी लोगों के मन में है कि अगर स्टेंट नहीं है तो सेफ्टी नहीं है। सो इफ यू कुड थ्रो सम मोर लाइट ऑन दीज आइडियाज। सो डीसीबी इज सेम, इट इज सेम जैसे मैंने आपको बताया, ड्रग कोटेड बलून। बलून के ऊपर मेडिसिन जो है हम कोट कर देते हैं, और उस मेडिसिन को उस एरिया में जहां पे ब्लॉकेज होता है, वो जो जहां पे जो उसकी हीलिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हील करने के लिए वहां पे हम एंटी प्रोलिफरेटिव एजेंट्स और एंटी कैंसर ड्रग्स को वहां पे हम जो है वहां पे छोड़ देते हैं, एज ए पेंट की तरह कर देते हैं, एंड बैलून को निकाल देते हैं। दिस इज कॉल्ड डीसीबी। और स्टेंट के अंदर हम परमानेंट मेटल, वो जो मेटल होता है कोबाल्ट क्रोमियम, उसके ऊपर ड्रग लगी हुई होती है पॉलीमर के थ्रू, और उस ड्रग को वहां पे हम छोड़कर आते हैं, तो वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज होती है, बट जो मैश है, जो स्टेंट है, वो परमानेंटली आपकी बॉडी में रह जाता है। तो दिस इज स्टेंट एंजियोप्लास्टी एंड डीसीपी इज स्टेंटलेस एंजियोप्लास्टी। ओके, टेल अस एज वाइज क्या डिफरेंस है? पीपल ऑफ यंगर एज, उनके लिए डीसीबी ठीक है? पीपल हु आर एल्डरली पीपल, उनके लिए डीसीबी सेफ है कि नहीं? तो डेटा कहता है कि डीसीबी के अभी लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। अच्छा। लिमिटेड इंडिकेशन ऐसे हैं कि जैसे आपको किसी को स्टेंट डला और वो स्टेंट बंद हो गया, जब स्टेंट बंद हो गया तो आपके पास क्या ऑप्शन है? दोबारा उसको खोल के या तो दोबारा नया स्टेंट डालो, या उसके अंदर ड्रग कोटेड बलून। अगर स्टेंट के अंदर मैं स्टेंट डालता हूं तो उसके बंद होने के चांस, पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है कि मेटल इनटू मेटल। सो इन केसेस के अंदर ड्रग कोटेड बलून इज द बेस्ट ऑप्शन। इट इज कॉल्ड क्लास 1 रिकमेंडेशन कहते हैं इसके अंदर। सेकेंडली, यंगर पॉपुलेशन के अंदर अगर हार्ट अटैक हुआ है
तो हमें इमेजिंग करके उसको देख लेते हैं, जैसे एक कैमरा डाल के अंदर कि किस तरह का है, कोई रप्चर हुआ है या केवल जस्ट इरोजन है और थ्रोम्बस है। तो उस थ्रोम्बस को निकाल के हम ड्रग कोटेड बैलून ले जाते हैं और वहां दवाई उसको पेंट कर देते हैं उस एरिया को जहां से थ्रोम्बस बना हुआ था, और करके बाहर आ सकते हैं। बिकॉज एक बार यंगर जनरेशन के अंदर, यंग पेशेंट के अंदर अगर हमने मेटल डाल दिया, इट विल रिमेन इन द हार्ट परमानेंटली फॉर 40 years 50 years, and the chances of reblockage is very high. So in such cases, limited cases, we can do a drug coated balloon angioplasty in such cases. अब बात है एल्डरली पेशेंट्स की। एल्डरली क्योंकि जब भी हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, चाहे स्टेंट से करें चाहे ड्रग कोटेड बैलून से करें, हमें उन्हें बहुत सारे ब्लड थिनर्स देने होते हैं, जैसे बोलते हैं एंटी प्लेटलेट एजेंट्स, और इनका साइड इफेक्ट होता है ब्लीडिंग होना। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर ब्लीडिंग की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनकी स्मॉल आर्टरीज होती हैं या स्टेंट बंद हो रहा होता है या डिस्टल वेसल्स होती हैं, उनके अंदर एल्डरली में डीसीबी इज द बेस्ट ऑप्शन। बिकॉज डीसीबी के बाद आपको जो एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हैं, ब्लड थिनर्स हैं, वो कम टाइम के लिए खाने हैं, और स्टेंट के बाद आपको बहुत लंबे टाइम के लिए खाने होते हैं। तो ये एडवांटेजेस हैं एल्डरली पेशेंट्स। So it is very individual specific. Yes. And of course, as you said, it's better for elderly people. Exactly. ठीक है। Tell me something, bypass grafts में भी क्या ये यूज होता है? एंड अगर किसी पेशेंट का ऑलरेडी स्टेंट लगा हुआ हो, in that case and then a blockage occurs, in that case can DCB be used? Yes. तो पहला इंडिकेशन यही है, अगर किसी का स्टेंट डला हुआ है और स्टेंट बंद हो गया है, उसको खोलने का बेस्ट तरीका है, पहले उसको नॉर्मल बैलून से खोलो, उसका रास्ता बनाओ, फिर उसके अंदर ड्रग वाला बैलून लेके जाओ, उसको फुलाओ और ड्रग को वहां रिलीज कर दो। 1 मिनट तक हम फुला के रखते हैं जिससे कि ड्रग टोटल रिलीज हो जाए उसके अंदर, और फिर निकाल लेते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी स्पेसिफिक इंडिकेशन फॉर द डीसीबी। सेकेंडली, बाईपास ग्राफ्ट, जैसे आपने पूछा था मुझसे क्या स्टेंट बंद हो सकता है, ऐसे बाईपास का ग्राफ्ट भी बंद हो सकता है। वो भी भगवान ने तो बनाया नहीं है, इंसान ने बनाया, वो भी बंद हो सकता है। जब वो बंद होता है, या तो उसके अंदर स्टेंट डालेंगे या ड्रग कोटेड बैलून एंजियोप्लास्टी करेंगे। सो डीसीबी इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन सच केसेस, बिकॉज हमको कम से कम मेटल देना है पेशेंट को। जितना कम मेटल होगा, उसकी नेचुरल हीलिंग ज्यादा अच्छी होगी आर्टरी। ओके, अच्छा ये बताइए नाउ, डीसीबी के बाद थिनर्स कितने टाइम तक लेने होते हैं? एंड इवन इफ समबडी डज डू इट इन इंडिया, कितना ऑलरेडी अवेलेबल है डीसीबी का प्रोसीजर? हर हॉस्पिटल में मिल जाता है? हाउ इज इट? सो अगर ब्लड थिनर की बात करेंगे तो डीसीबी के बाद हमें ब्लड थिनर ज्यादा से ज्यादा डुअल एंटीप्लेटलेट 2 दवाइयां जो होती हैं वो 3 महीने तक खानी होती हैं। उसके बाद सिंगल दवाई खाते रहो और चलता जाएगा। स्टेंट के बाद आपको पूरे 1 साल तक खानी होती है 2 मेडिसिन। तो ये डिफरेंस हो गया। अब दूसरा आपका क्वेश्चन था अवेलेबिलिटी और इंडियन डेटा। इंडिया के अंदर धीरे धीरे ये, अगर हम मेट्रोस की बात करेंगे तो मेट्रोस की में इसकी अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट इन एवरी हॉस्पिटल इट इज अवेलेबल नाउअडेज। स्मॉलर सिटीज के अंदर अभी धीरे धीरे ये एंटर कर रहा है, अभी अवेलेबिलिटी कम है और लोगों का एक्सपीरियंस इसके लिए अभी कम है, बिकॉज यू नीड सम एक्सपर्टीज फॉर द ड्रग कोटेड बैलून। जैसे कि आपको स्टेंट के लिए स्टार्टिंग में चलती थी, डीसीबी के लिए भी आपको यू नीड सम एक्सपर्टीज। So we are talking about tier 2, tier 3 cities, and are we trying to say that we don't have enough specialists there, hence it's not available in as many hospitals? So 2 things. Specialists are not available, and the exposure, their exposure is for the DCB is not so much as for the angioplasty with stents. So they need to understand कि how to do a DCB, because हर किसी को DCB नहीं करना आता, या हर कोई DCB नहीं कर सकता। They need some expertise, some training, and then they will do it. ठीक है, but in metro, yes, lot of people are doing। और डेटा अगर मैं बोलूं तो पहले जो आज से 4-5 साल पहले था, वो 2 to 3% एंजियोप्लास्टी आउट ऑफ 100, तभी लोग DCB करते थे। एंड नाउ द डेटा इज अराउंड, आई कैन से 10% to 15% people are doing drug coated balloon angioplasty, which is very fast growing, and this is a very important. अगर हम 30% तक ले आएंगे, this is very good actually. And recovery rates are also similar in both? Much better. Much better. All right. Okay, so we have spoken about both the processes, but let's go back to how we had started our conversation. Ki now we're talking about today's people. So there is 2 variety. There is one variety of people who are hale and hearty, और जिनका कुछ देख के पता नहीं चल रहा है that there is an issue.
And then there are people who already have had a history of heart ailments. For both the sets, if you could tell us some, generic things to take care of. देखो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज फॉर बोथ, फॉर द प्राइमरी प्रिवेंशन एज वेल फॉर द सेकेंडरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन जिनको अभी डिजीज नहीं हुई है, सेकेंडरी प्रिवेंशन जिनको डिजीज हो चुकी है. तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू टॉक अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूँ, ABCDE. A is keep your HbA1c, that is blood sugar, less than 7 HbA1c, जो 3 महीने की शुगर का एक पैरामीटर होता है उसको. B is, please everybody take a note of this. It's very important. B is blood pressure. Keep your blood pressure less than 120, less than 80. ठीक है. C is your LDL cholesterol, the bad cholesterol. Keep your bad cholesterol less than 70. This is for everyone. Okay. ठीक है. D is, D is for the your diet. आपकी डाइट के अंदर प्रोसेस्ड फूड नहीं होना चाहिए. आपकी डाइट में जंक फूड नहीं होना चाहिए. आपकी डाइट, दैट्स अ वेरी टॉल ऑर्डर, बिकॉज़ मेजॉरिटी खाना दैट वी आर ईटिंग इज कैन बी प्रोसेस्ड फूड होता है सारा का सारा. इवन इफ हम हेल्दी भी खाने की कोशिश करें तो भी इट इज प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड. इवन व्हाट वी आर ऑर्डरिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, आवर एक्सपेक्टेशन इज 10 मिनट में खाना घर पे आ जाए, बट देन व्हाट इज इट? रेफ्रिजरेटर्स में रखे होते हैं और वो आप आके आप सोचते हो कि आपने सो माइक्रोवेव किया और आपने खा लिया. दैट्स नॉट गुड एक्चुअली. सो हमेशा बोलता हूँ, ईट व्हाट योर ग्रैंडमा एट. वो फटाफट जो घर में बना देती ना, चाहे उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के बनाते, दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ रादर देन आप ईटिंग प्रोसेस्ड और फूड, जंक फूड वगैरह. दिस एंड ई इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज मीन्स 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक. ठीक है, वो आप कैसे भी करो. Either 20 minutes every day, either 30 minutes 5 days in a week, and 2 days muscle training. Muscle strengthening 2 days in a week, but not more than 15 minutes. That's okay. अच्छा, उतना भी is enough. That is okay. Okay, tell me something. Exercise for the sanity, not for the vanity. Of course, for vanity, whoever wants to do, great. But for sanity, extremely important. Bare minimum, this much has to be done. Also, tell me now, there is one differentiation, as how you said, muscle training, which usually we refer to going to the gym. And the other is cardio, जिसमें walking, running, everything, all the other things kind of come into that. तो उसमें भी is there a distinction? What if somebody cannot go to a gym, does a yoga or something like, और घर पे ही if somebody wants to do basic push-ups, does that also work? Exactly. किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज होनी चाहिए. सपोज आप जिम नहीं जा रहे हो, जिम तो अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं है. यू कैन डू अ ब्रिस्क वॉक. आप गार्डन में जाएं, गार्डन नहीं है छत पे करें, ब्रिस्क वॉक कर लें. 20 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक करें, बट इट शुड बी ब्रिस्क वॉक. ब्रिस्क वॉक का मतलब वाइल डूइंग वॉकिंग, जब आप वॉक कर रहे हो तो टेक ए टॉक टेस्ट. आप अपना नाम कैसे बोल पा रहे हो, क्या आपकी सांस फूल रही कि नहीं. अगर आप आराम से अपना नाम ले रहे हो, इसका मतलब आप ब्रिस्क वॉक नहीं कर रहे हो. टहलना नहीं है. टहलना नहीं है. इट शुड बी ब्रिस्क. मेरा नाम नवीन भामरी, इतनी सांस फूलनी चाहिए आपकी जब आप वॉक कर रहे हो. और फिर देर आर सर्टेन फॉर्मूलाज, 220 माइनस योर एज, और उसका 85% निकाल के उतनी हार्ट रेट अगर आप अचीव करो, दैट इज टारगेट हार्ट रेट, उसका 60 to 80% के बीच में आप वॉक कर रहे हो, देन इट इज गुड फॉर योर हार्ट. तीसरा, अगर आप वॉक भी नहीं कर सकते, सपोज आपके घुटने खराब है, एल्डरली पेशेंट्स हैं, वो कहते हैं मेरे घुटने खराब हैं डॉक्टर साहब, मैं तो वॉक ही नहीं कर सकती. यू जस्ट डू अ सोलियस एक्सरसाइज. अपने पैरों को यहाँ पे रखो, इसको ऐसे उठाओ, इसको ऐसे उठाओ, 10 सेकंड तक गिनती गिनो, छोड़ दो, 10 सेकंड तक गिनती गिनो. दिस इज ऑल्सो समथिंग यू आर डूइंग फॉर योर हार्ट. और आधे घंटे का टाइम नहीं है. 10 मिनट आफ्टर ब्रेकफास्ट, 10 मिनट आफ्टर लंच, 10 मिनट आफ्टर डिनर आप वॉक कर सकते हो. कोई भी कर सकता है. जो नहीं करता वो केवल बहानेबाजी करता है. राइट. एंड इफ नथिंग एल्स, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर इवन अवेलेबल ऑनलाइन. यस, ऑनलाइन आप योगा कर सकते हो. आप देयर आर इतने कोर्सेज चलते हैं. योगा, प्राणायाम, दिस इज वेरी गुड. योगा इज अ वेरी गुड फॉर एवरीबडी. किसी भी तरह के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वेरी गुड. प्लैंक्स कर सकते हो आप घर के अंदर. आप पानी की बोतल लेके डंबल्स बना के उसकी एक्सरसाइज कर सकते हो. तो जहाँ चाह वहाँ रहा. So do not make excuses. Make sure that the ABCDE you've noted and you try and follow as much of it as you can. Now, before we close, tell us your final 3 giveaways, which you'll want to share with our audiences. देखो, सबसे अभी हम जो जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि यंग हार्ट अटैक्स और एंजियोप्लास्टी और DCB एंड ऑल, देखो हमारे को
जो सिनेरियो आ गया, आज का जो सिनेरियो है, जो हॉस्पिटल में हम देखते हैं जी कि हाँ। पहले जब व्हेन वी वर इन द मेडिकल कॉलेजेस, Yeah. तो उस समय द children are bringing their fathers and mother, their parents, for the treatment of heart attack. But now the scenario is father is bringing their son or Yeah. daughter for the management of heart attack. Right. तो हमें अपनी यूथ जनरेशन को बहुत बचा के रखना है। उनको बचाने के लिए हमें उनको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में Yeah. बताना है, डेली बताना है। इसलिए जिससे कि उस जनरेशन को अगर हम बचा पाएंगे तो तभी हम अपने देश के भविष्य को बचा सकते हैं। तो एंजियोप्लास्टी बहुत अच्छी है, स्टेंट्स आर वेरी गुड। Yeah. इफ अगर आपको किसी को हार्ट अटैक हो गया, भगवान ना करो हो, लेकिन हो गया है, स्टेंट इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी टू सेव योर हार्ट। डीसीबी इज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, बहुत अच्छी है, बट द बेस्ट इंटरवेंशन इज ऑलवेज अ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज द बेस्ट इंटरवेंशन। तो अपनी लाइफस्टाइल को ऐसे बनाओ कि आप इस नौबत पर ही नहीं आओ कि आपको एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े। Yeah, absolutely. Thank you so much for joining us. And all of you who want to follow Dr. Naveen Bhamri also do that. He is extremely active on Instagram. You will keep on learning a lot from there as well. Thank you. Thank you so much. Thank you, Divya.